हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ नाउन एंड हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। सो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन। सो व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम फॉर अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल in specific, and common noun, it is a name of a place, person, animal or thing in general. For example, proper noun example is Ram, Delhi, and common noun example is boys. So this boy, this is a, we are using this term in general, not in specific. I'll give you an example. I live in Delhi. I live in a city. Now in both the examples, how can you differentiate what is a proper noun and which one is a common noun? Now firstly this example. In this example, Delhi is a noun because it's a name for a place. So Delhi is a noun. Now whether it is a proper noun or a common noun, of course it is a proper noun because we are using this in a specific term. And I live in a city, this is a common word. This word is used in a general sense. So yeah, this is a common noun and this is a proper noun. Now there is one more example. Ram plays the game. Now in this example, Ram is a noun. So this is a proper noun or common noun? This is a proper noun because Ram is a specific name of a person. So this is a proper noun. One more example. The boy goes to the nearest village. Here, which word is a noun? Boy is a noun. And is it a proper noun or a common noun? It is a common noun because we have not used a specific name of the boy. We have just used a general term, boy. So boy is a common noun. Now one more thing which we have to take care while using proper noun and common noun, and that is whenever we use proper noun, we always use a capital word for the proper noun. The first alphabet of the word is capital, and in common noun it is never we never capitalize the word unless it is the first word of the sentence. So this is one of the main difference between the proper noun and common noun. Now we will study collective nouns. What are collective nouns? Okay, so collective noun is a name which is given to a group of noun. For example, a bunch of grapes, and we can use an army of soldiers, a band of musicians. So these are the collective nouns. So how can we treat them? Whether we have to treat them as a singular or plural? Let's see. It is a bunch of grapes. Now this a bunch of grapes. आप इस नाम से देख सकते हैं कि bunch of grapes जो हैं वो plural दिख रहे हैं, बट एक्चुअली हम इसे एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं. वो कैसे? अ bunch of grapes. हम इसके आगे हमेशा is लगाएंगे. We will never use are. हमेशा is यूज होगा. It will be always treated as a singular. It will also be treated as singular and this also will be treated as singular. I'll give you one more example of the collective noun. Example है the committee not agree with the
decision. In this example, we are using committee as a group of noun, as a group of people. So here we are using committee as a group of people. So here also, as I told you in the previous example, कि जब भी ऐसे group of noun हम use करते हैं तो उसके आगे हमेशा उसे एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं. सो इस केस में भी हम उसे एज ए सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे. सो इसमें वॉज लगेगा या वर लगेगा? ऑफ कोर्स इसमें वॉज लगेगा, क्योंकि कमिटी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है. एंड कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ नाउन. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ people, a group of places, a group of animal, a group of thing. So collective noun is basically a group. So in this example we are using committee as a group of people. So here we will use here we will treat it as a singular term. So we'll use was here. सो हमारे नाउन्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज अ प्लूरल ही लिखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास सीजर्स. हमारा कोई भी वर्ड सीजर नहीं होता. अगर हम उसे सीजर बोल रहे हैं तो हम उसे गलत बोल रहे हैं. हमेशा सीजर्स जो होता है वो करेक्ट वर्ड होता है. सो आप एग्जाम्पल देखिए. सीजर्स केप्ट ऑन टेबल. अब इस एग्जाम्पल में हम क्या यूज करेंगे? इज या आर. इसमें हम आर यूज करेंगे क्योंकि सीजर्स है तो एक प्लूरल फॉर्म. क्योंकि अगर हम सीजर्स बोल रहे हैं तो उसे हम काफ़ी सारी सीजर्स को डिनोट कर रहे हैं. लेकिन अगर हमें इसी सीजर्स को एक सीजर को डिनोट करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सीजर इज kept on table. हमारा सीजर कोई भी वर्ड नहीं होता. सीजर्स होता है हमेशा. सो जब भी हम लिख रहे हैं सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, और अगर हम एक सीजर को डिनोट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज केप्ट ऑन द टेबल. सो इसी तरह और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन्स में जो कि एस में ही, जिसको हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं. जैसे कि ट्राउजर्स, pants, surroundings, tongues. So there are so many words जिनके साथ हम s ही लगाते हैं. उन्हें हम बिना s के यूज़ नहीं कर सकते. So उस केस में जैसे कि अगर हम ट्राउजर का एग्जांपल लें, so यहाँ पर आएगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज केप्ट ऑन टेबल. Because trouser is not a word, we'll always use trousers. And here is scissors. ओके, सो अब मैं बताने जा रही हूँ नाउन्स की क्लासीफाई करने वाली हूँ उन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में. काउंटेबल नाउन्स आपने ज़रूर पढ़ा होगा पहले. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, टेबल, चेयर. ये सब हमारे काउंटेबल नाउन हैं. और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो होते हैं जैसे कि नॉलेज, लव, ट्रस्ट, फन, हैप्पीनेस. दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स. जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसे कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते. ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उन्हें कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं. जैसे कि हैप्पीज हम कभी भी नहीं यूज़ करते. इट्स ऑलवेज हैप्पी. फन्स नहीं हम यूज़ करते. इट्स ऑलवेज फन. तो अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, I ate 5 bread. क्या ये वर्ड सही है? I ate 5 bread. नहीं, ये वर्ड गलत है. क्यों? क्योंकि जो ब्रेड है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. ब्रेड हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है. सो उसके साथ हम कभी भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल तो कभी काउंट कर ही नहीं सकते हम. सो उसके आगे हम 5, 6 कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते. सो अगर हमें बताना है कि हमने 5 ब्रेड खाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सी, I ate 5 slices of bread. Now this is the correct sentence. अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए. एडवाइस भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है.
सो एडवाइस में क्या होगा कि शी गेव मी एडवाइस। ये है हमारी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर हमें सिंगुलर में लिखना है कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सो इसका ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।